Good, good afternoon, students. Welcome to all in your SST class. Dear students, as you know, in the previous videos, the some topics of the current chapter had left. So today we will discuss about those remaining topics of this chapter. So without wasting too much time, now we come on our topics. In the previous video, we had studied about the Bhudan Gramdan movement, which was initiated by the Vinoba Bhave, and we were also discussing about the contribution of the agriculture in the national economy and providing the employment. We had discussed about these topics. So once more I am going to tell you what is the contribution of agriculture in the national economy. Dear students, if the board asks the question what is the contribution of the agriculture in national economy, you have to write the answer that the agriculture's help to the national economy into the various ways. First, agriculture provides us the food grains which we do not only consume but also export to the other countries, and in this way we earn the foreign exchange which are very beneficial for economic development. Second, the agriculture provides the raw materials for the industrial use. Third, agriculture provides the employment to the peoples, and in this way they earn their livings. So students, these are the topics which you have to write in the questions. What is the contribution of the agriculture in our national economy? Now one question is put up: if agriculture are very important for our development, so what is the reasons behind the declining of the development of agriculture in our country? As you know, the contribution of the agriculture in our country is reducing day by day, and the people who are engaged in agriculture, they are also faced to the many problems. Even some farmers are forced to commit the suicide. So what is the reason behind it? So today we are going to discuss about the reason behind these mishappenings. So dear students, first, the reason of declining the contribution of agriculture or declining the development of agriculture, you have to note some points. The first, reducing the subsidy means the government is reducing the subsidies day by day on agricultural input, such as on fertilizers, seeds, etc. In the comparison of the other developing countries like USA, China, the government provides the high subsidy to the farmers for their economic development, and in this way the farmers can get the more profits. बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कृषि यद्यपि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, लेकिन फिर भी किसान बहुत परेशान है। यहाँ तक कि किसान अपनी समस्याओं से इतना त्रस्त है कि वे
आत्महत्या करने का भी प्रयास करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर इस पे हम गौर करें तो हमें मिलता है कि जो हमारी सरकार है वो दिन प्रतिदिन जो कृषि पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, सब्सिडी मतलब छूट, सब्सिडी आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। जैसे कि किसी चीज़ की मार्केट में करंट प्राइस सपोज करिए 500 रुपये है, लेकिन वो इसेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत ज़रूरी प्रोडक्ट है और हम लोग उसे मार्केट रेट पे ख़रीद नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस पे गवर्नमेंट क्या करती है कि उसका कुछ पार्ट खुद बियर करती है और कुछ पार्ट जितना हम दे सकते हैं उसको उतना ही हमसे लेती है। तो जो पार्ट गवर्नमेंट बियर करती है उसे हम सब्सिडी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो ये BPL कार्ड के थ्रू आपको राशन मिल रहे हैं, मार्केट में उस राशन की प्राइस जो है, जैसे कि सपोज करिए 1 kg आप राइस परचेज कर रहे हैं तो मार्केट में उसकी प्राइस डिफरेंट है उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। जैसे कि 20 रुपीज़ हो सकती है, 25 हो सकती है, 30 हो सकती है। तो अब इस प्राइस रेट पे जो हमारे देश की एक बहुत बड़ा जो हमारी जनसंख्या का एक पार्ट है वो इतना गरीब है कि इस प्राइस पे वो खरीद नहीं सकता। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कोई भूखा ना मरे, क्योंकि ये बेसिक नीड है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो खुद, जैसे कि सपोज करिए कि 20 रुपये kg का राइस है और आपको 4 रुपये kg पे मिल रहा है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप दुकानें हैं जिसको गांव में हम लोग आम भाषा में कोटा के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पे जो 16 रुपीज़ बच रहा है वो गवर्नमेंट खुद बियर कर रही है, खुद गवर्नमेंट दे रही है। इसी प्रकार से आपको गैस पे सब्सिडी मिलती है। तो जो सब्सिडी हमको फर्टिलाइजर्स पे मिलनी चाहिए, पेस्टिसाइड्स पे मिलनी चाहिए, सीड्स पे मिलनी चाहिए, जो हमको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए मिलनी चाहिए, उस पे गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी डे बाय डे रिड्यूस कर रही है। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी रिड्यूस कर देगी तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा एग्रीकल्चर में वो क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जैसे कि किसी फसल को पैदा करने में हमारी जो लागत है अगर 1000 रुपये लग रही है तो हम 1000 से कम में अगर बेचेंगे तो घाटा होगा, और अगर हम 1000 से ज़्यादा में बेचेंगे तभी हम कुछ बेनिफिट्स पा सकते हैं, तभी हमारा कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि सब्सिडी रिड्यूस की है तो 1000 रेट पे कोई लेने को तैयार नहीं है। उससे कम रेट पे कोई अदर कंट्री जैसे कि USA है, USA में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो 1000 पड़ रही है। सपोज करिए USA में सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है अधिक, तो जो इन्वेस्टमेंट है फार्मर्स का वो 500 रुपये पड़ रहा है, और वो इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है टैक्सेस के साथ तो 700 रुपये में। अब आपको 700 रुपये में मार्केट में मिल रहा है राइस, तो आप क्यों किसी किसान के यहाँ से 1000 रुपये में ख़रीदेंगे? ऐसे में जब हमारे प्रोडक्ट बेचेंगे नहीं, हमारा बेस है एग्रीकल्चर, हमारा बिजनेस है एग्रीकल्चर, उसी से हमको कमाना है, तो हमारी इनकम जो होगी वो कोलैप्स हो जाएगी और फिर हम कोई नया कदम, ऐसा कदम जो नहीं उठाना चाहिए उसके लिए विवश हो जाते हैं। तो फर्स्ट रीजन, द गवर्नमेंट इज रिड्यूसिंग द सब्सिडीज डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ऑन एग्रीकल्चर। सेकेंड, into the some part of India still the irrigation system has not been developed, so due to this the production in agriculture are very low। आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पे अभी भी इरिगेशन सिस्टम जो है डेवलप नहीं हो पाया है, और जब इरिगेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है तो वहाँ के लोग ज़्यादातर मानसून पे रेनफॉल के ऊपर निर्भर हैं। अगर रेनफॉल हुई अच्छी तो उनकी क्रॉप्स अच्छी होगी, अगर रेनफॉल टाइमली नहीं हुई, अच्छी नहीं हुई तो क्रॉप्स फेल हो जाएगी। तो अभी भी उसका बहुत ही कम है। थर्ड, लैक ऑफ द टेक्निकल नॉलेज। although the government is providing the technical knowledge
रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सच एज, आप जानते होंगे कि आपके रेडियो पे, अब तो रेडियो का प्रचलन बहुत कम हो गया, टेलीविजन्स पे खेती किसानी से जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रोग्राम आते हैं, उसमें किसानों को ये जानकारी दी जाती है कि कैसे वो किस प्रकार की सॉइल में किस प्रकार की क्रॉप्स को बोएं और किस टाइम पे क्या क्या दें, जिससे उनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। लेकिन इसकी अभी भी कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो एक रीज़न हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस, एक हो गया लैक ऑफ द टेक्निकल नॉलेज। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू कैन बी मेंशन इन द रीजन बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चंस पुट अप, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द दीज प्रॉब्लम्स। नया क्वेश्चन वही बन जाता है कि गवर्नमेंट इनके लिए स्टेप क्या उठा रही है, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप नहीं होगा तो उसके ऊपर अदर सेक्टर भी उसी के ऊपर डिपेंड है। सपोज करिए कोई डेयरी है, जितने भी आप, जैसे कि आप बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री है तो उसमें भी आटा यूज हो रहा है, तो जो आटा यूज हो रहा है, जो फ्लोर यूज हो रहा है, अगर वो महंगा होगा तो बिस्किट भी महंगा होगा। तो हमारा जो बिजनेस होता है वो इंटरलिंक होता है, एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट इंश्योर करता है। अगर कोई एक व्यक्ति परेशान है तो दूसरा कुछ समय के बाद, कुछ लोग जल्दी इफेक्टेड होंगे, कुछ लोग बाद में प्रभावित हो जाएंगे। यानी सबकी, जैसे कि अगर एक की इनकम गिर रही है तो कहीं ना कहीं सबकी इनकम के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर एक कंट्री, जैसे कुछ मेजर कंट्रीज हैं, अगर अमेरिका फॉल डाउन हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस समय अमेरिका की इकोनॉमी डाउन हो रही है, इससे पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे कंट्री की इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो रही है। अगर इंडिया की इकोनॉमी डाउन होती है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो अदर कंट्रीज़ के मार्केट के भी ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। दो चीज़ें देखिए होनी चाहिए, बायर होने चाहिए, सेलर होने चाहिए। अगर ये दोनों का एक कम्बिनेशन है तब तो अच्छा है, अर्थात कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसके बायर होने चाहिए। अगर बायर नहीं है, सपोज करिए मैं रिच पर्सन हूँ, मैं जैसे हीरो होंडा कंपनी है, हीरो होंडा है, मारुति सुजुकी है, टाटा है, वो बना के प्रोडक्ट क्या करेगी जब कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। हम स्कूल ओपन क्या करेंगे जब कोई इसका फीस जो है अफोर्डेबल नहीं होगी, कोई पे नहीं कर पाएगा, तो फिर उससे हमारी भी इनकम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो यही रीज़न है कि ये डिक्लाइनिंग हो रही है, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसीडर कर रही है। तो नेक्स्ट रीजन है रीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। आप अब आंसर अपने आप से लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन से स्टेप लिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट वो मेंशन कर दिए हैं, बस आप वही पॉइंट लिख देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, देखिए आपका पहला इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी रिसर्च सेंटर खोजे गए हैं जहाँ पे रिसर्च किया जाता है कि कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार की सॉइल में हम कैसी क्रॉप बोएं कि ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, हम सॉइल की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार की सीड्स बोएं कि ज़्यादा पैदावार दे। पहले देखिए आप लोग परंपरागत ट्रेडिशनल सीड्स का प्रयोग करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं करते थे, तो जो उनका प्रोडक्शन लेवल था वो बहुत कम था। 1960s में, 1960s का मतलब 1960 टू 1970 के बीच में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई क्रांतियाँ आई, उसके फलस्वरूप आप देखते हैं कि जो HYV सीड्स आ गई, हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स जो है, जो ज़्यादा पैदावार देती है, जिसको गांव में लोग हाइब्रिड के नेम से जानते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग होने लगा, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग होने लगा, यानी अगर फसलों को कोई रोग लग जाता है तो उसको रोग को दूर करने के लिए उपाय ढूंढे जाने लगे। सो यू कैन बी सी द रिजल्ट मीन्स द प्रोडक्शंस बिकम्स वेरी हाई, जो प्रोडक्शन होता है वो कई गुना बढ़ जाता है। सेकेंड, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ ओपन की गई हैं, पर्पज़ वही है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग क्या कर पाएँ, पढ़ाई करें। सेकेंड है वेटरनरी सर्विस। वेटरनरी सर्विस का मतलब ये है कि जो पशु चिकित्सा वगैरह केंद्र हैं, यानी जो पशु हमारे हैं वो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आते हैं, उनकी बीमारी के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए भी खोले गए हैं।
एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स ओपन हुए हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। आपको ये सारे पॉइंट्स आपको बस लिख देने हैं कि स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है। अब एक क्वेश्चन पूछेगा क्या रिजल्ट रहा, तो रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहा, यानी वेरी गुड रिजल्ट आ रहा। आपको देखने के लिए प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। अब नाउ द क्वेश्चन पुट अप लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन पहले हम जानेंगे, पहले आप ग्लोबलाइजेशन जानेंगे तभी समझ पाएंगे। यानी पूछ रहा है ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी बाज़ारें जो हैं दुनिया की एक दूसरे से लिंक हो जाएं। मीन्स जो इंडियन प्रोडक्ट है वो अदर कंट्रियों में बिके और अदर कंट्रियों का प्रोडक्ट दूसरे कंट्रियों में बिके। एक प्रकार से ट्रेड को फ्रीडम मिल जाती है। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब हम आपको जो टॉपिक है उससे समझा रहे हैं। ट्रेड को फ्रीडम मिलती है, हमको भी फ्रीडम है। अगर हम चाहें अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए हम गवर्नमेंट जिन जिन कंट्रियों में हमको अलाउ करती है, कुछ कंट्रियों में रिस्ट्रिक्ट कर सकती है गवर्नमेंट, वो उनके अपने इंटरनल रिलेशंस के ऊपर होती हैं, सिक्योरिटी रीजन से हो सकता है। और बाकी कंट्रियों में जैसे सपोज करिए हमको अमेरिका में ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो अमेरिका में अगर हमको जॉब ऑफ़र होता है तो हम इंडिया को छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे, अमेरिका में चले जाएंगे। अब सपोज करिए कि मुझे अच्छा नॉलेज था किसी फील्ड का, लेकिन मैं सर्विस अपनी कंट्री में ना प्रोवाइड कर करके किस कंट्री को बेनिफिट पहुँचा रहा हूँ, अमेरिका को। तो यही पूछ रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर स्पेशली इन इंडिया। जो ग्लोबलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का, वो इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडिया में दो रिजल्ट देखने को मिलते हैं। एक तो ये होता है कि हमारा जो कुछ फील्ड्स में हम अच्छा कर पाए हैं, कुछ फील्ड्स में निगेटिव, यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। अब जैसा आंसर आपको पूछता है वैसा आपको लिखना है, या एक पूछता है तो दोनों को इंक्लूड करके लिखना है कि द ग्लोबलाइजेशन हैज ओपन द मार्केट्स फॉर ऑल द कंट्रीज। now we can be buy the agricultural product or the any product from the any countries according to our choice, and also the seller can be sell their product into the any countries। अर्थात जहाँ पे जिसको ज़्यादा बेनिफिट होगा वो अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेचेगा। आप अभी देखिए कि जो आपके यहाँ पे जिसको जो यहाँ के प्रोडक्ट होते हैं जैसे चना वगैरह है, बना बना के लोग शहरों में बेचते हैं रोड पे, क्योंकि वहाँ पे उनको उसका ग्रोथ ज़्यादा मिलेगा, उसका पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो वहाँ पे वो एक काम कर रहे हैं कि हर चीज़ की अपॉर्चुनिटीज हर जगहों पर अलग अलग है। तो यहाँ हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन हो जाने के कारण क्या हो गया, मैंने अभी पीछे इसका रीज़न आपको बता दिया है कि द कंपटीशन हैज़ बीन इंक्रीज। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नाउ द एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोड्यूस ऑन अ लो इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा कंपटीशन है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या पैदा करें, पैदावार। नाउ द एवरी प्रोड्यूसर हैज़ टू प्रोड्यूस मोर एंड द मोर ऑन अ लेस इन्वेस्टमेंट सो दे कैन बी गेट द प्रॉफिट। अब जो कंट्री जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जिसकी हाई होगी उसी की हेल्प से ज़्यादा पैदावार होगी, तो इट रिक्वायर्स द हाई टेक्नोलॉजी। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द नीड ऑफ द टेक्नोलॉजी हैड बीन इंक्रीज। टेक्नोलॉजी की जो मांग है वो बढ़ गई है, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी जितनी आएगी उतना ही ज़्यादा हम उसका प्रयोग कर पाएंगे। सेकेंड रीज़न आपका है कि द गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज द सब्सिडी। अब गवर्नमेंट को सब्सिडी इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सब्सिडी वो इक्वल नहीं देती है तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगी अपने फार्मर्स को, अपने पॉपुलेशंस को, अपने देश के लोगों को। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यू कैन बी रीड दीज टॉपिक्स इन योर बुक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन्स, विदाउट एनी हेजिटेशंस, यू कैन बी कॉन्टैक्ट मी और टेस्ट मी। तो पूरे वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट डे अर्थात सैटरडे को में भी टेस्ट लिया जा सकता है। आप प्रिपरेशन करके रखिएगा। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि जो आपका प्री मिड टर्म जो बोर्ड में होता है, प्री मिड टर्म, मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म,
तो प्री मिड टर्म जो है आपका वो 20 अगस्त से स्टार्ट होने जा रहा है। और जो 20 मार्क्स आपके इंटरनल हैं, मैंने आपको बताया है कि वो मार्क्स आपकी क्लास पंक्चुअलिटी, अटेंडेंस, नोटबुक प्रिपरेशन आज पे मिलेगा। अब आपका जो सिलेबस होगा प्री मिड टर्म के लिए वो सभी बुक्स के पहले चैप्टर होंगे, यानी हिस्ट्री का पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ऐसे ही ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर आपका होगा पावर शेयरिंग, और इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर होगा आपका डेवलपमेंट। यानी 4 चैप्टर जो है आपके सिलेबस में आएंगे, आपके प्री मिड टर्म में आएंगे। 25 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो मल्टीपल चॉइस होगा, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, मैचिंग्स हो सकते हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि यही बेस बनेगा आपकी बोर्ड के नंबर्स को। जो 20 मार्क्स आपके इंटरनल मिलते हैं, आपको पता है कि जो 5% मार्क्स है इसका जुड़ेगा 2 बेस्ट, जो यानी 3 में से जो 2 बेस्ट एग्ज़ाम आपके होंगे उनको हम इंक्लूड करेंगे, और बाकी जो 10 नंबर आपके होंगे वो आपके नोटबुक प्रिपरेशंस, क्लास अटेंडेंस एक्सेट्रा पे मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।